Good morning student. Today I will teach you physical education unit 7. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 7 के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये क्या होता है? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. A well-designed fitness assessment provides students, teachers and parents with the necessary information to design a proper program to fitness for each student. In fact, there are 5 components of health related fitness. Before learning the procedural method of measuring of various components of health related fitness, it would be better to know about these components in brief. Cardiovascular endurance. It is the ability to exercise the entire body for long period of time. It requires a strong heart, healthy lungs and clear blood vessels to supply the body with oxygen. This is an important component of fitness because cardiovascular endurance such as VO2 max test, endurance run, walk 1 mile, rock put, walk test, Harvard test, step test, 1 kilometer run, IPFT 1.6 kilometer run, 12 minutes copper test, etc. Muscular strength. It is the amount of force of muscles or muscles group can exert. There are various tests to measure muscular strength. For example, partial push-up, weightlifting with heavy weights with few repetitions, पुलअप्स, partial curl-up, modified push-ups and etc. तो इसका मतलब ये है कि जो शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम है, मतलब उसकी जो मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी फिटनेस का आकलन हम करते हैं, उस पर एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया फिट मूल्यांकन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को आवश्यक जानकारी के साथ प्रत्येक छात्र के लिए फिटनेस का एक उचित कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रदान करता है। वास्तव में स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस के 5 घटक हैं। स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस के विभिन्न घटकों को मापने की प्रक्रिया विधि सीखने से पहले इन घटकों के बारे में संक्षेप में जानना बेहतर होगा। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, यह लंबे समय तक पूरे शरीर का व्यायाम करने की क्षमता है। शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए एक मजबूत हृदय, स्वस्थ फेफड़े और स्पष्ट रक्त वाहिकाओं की आवश्यकता होती है। यह फिटनेस का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह फिटनेस के अन्य घटकों को प्रभावित करता है। हृदय की धीरज को मापने के लिए विभिन्न परीक्षण हैं जैसे VO मैक्स टेस्ट, एंड्योरेंस रन, वॉक 1 मील रॉक पुट, वॉक टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 1 किलोमीटर रन, IPFT 1.6 किलोमीटर रन, 12 मीटर कूपर परीक्षण आदि। मांसपेशियों की शक्ति, यह एक मांसपेशी समूह को बल की मात्रा को बढ़ा सकता है। मांसपेशी की ताकत को मापने के लिए विभिन्न परीक्षण हैं। उदाहरण के लिए आंशिक पुशअप, कुछ पुनरावृत्तियों, पुलअप, आंशिक कर्लअप, संशोधित पुशअप आदि के साथ भारी भार के साथ वजन उठाना। उसके बाद हमारा आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटीज टू यूज़ द मसल विच आर अटैच्ड टू द बोन्स several times even without getting tired. In other words, it can be said that it is ability to muscle to perform repeated exercise for long duration without fatigue. There are various tests to measure muscular endurance such as push-ups, sit-ups, pull-ups, running on a treadmill, etc. Flexibility. It is a range of motion of joints. Individuals with good flexibility have favor sore and injured muscle. There are various tests for flexibility. For example, sit and reach test, modified sit and reach test, V-sit test, toe touch test, floor touch test, back stretch test and modified Thomas test. Body composition. It is one of the major components of health related fitness. Body composition is the percentage of lean body mass, i.e. bones, tendons, muscles, water, ligaments, organs, etc. in comparison to body fat. Body composition can be measured by using an
instrument called calipers are specialist scale, or it can be calculated by using body mass index BMI, which use height and weight to determine the BMI. तो इसका मतलब ये है कि जो मांसपेशियों का धीरज है उसमें यह मांसपेशियों का उपयोग करने की क्षमता है जो हड्डियों से जुड़ी होती है। कई बार बिना रुके, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह थकान के बिना लंबे समय तक बार बार व्यायाम करने की मांसपेशियों की क्षमता है। मांसपेशियों के धीरज को मापने के लिए विभिन्न परीक्षण होते हैं, जैसे कि पुशअप, सिटअप, पुलअप, ट्रेडमिल पर दौड़ना आदि। लचीलापन यह जोड़ों की गति की सीमा है। अच्छे लचीलेपन वाले व्यक्तियों में कम गले और घायल मांसपेशियां होती हैं। लचीलेपन के लिए विभिन्न परीक्षण हैं। उदाहरण के लिए बैठो और पहुंच परीक्षण, संशोधित बैठो और पहुंच परीक्षण, वी बैठो परीक्षण, पैर की उंगली परीक्षण, तल स्पर्श परीक्षण, पीठ खिंचाव परीक्षण और संशोधित थॉमस परीक्षण। शारीरिक संरचना यह स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस के प्रमुख घटकों में से एक है। शारीरिक संरचना शरीर के वसा की तुलना में दुबले शरीर के द्रव्यमान का प्रतिशत है, अर्थात हड्डियाँ, टेंडन्स, मांसपेशियों, पानी, स्नायु बंधन, अंगों आदि। कैलिपर्स नामक एक उपकरण का उपयोग करके शरीर की संरचना को उच्च मापा जा सकता है। एक विशेष पैमाने या यह बॉडी मास इंडेक्स BMI का उपयोग करके गणना की जा सकती है, जो BMI निर्धारित करने के लिए ऊंचाई और वजन का उपयोग करता है। उसके बाद हमारा आता है पुशअप्स। इसके जो पर्पज़ हैं वो हैं टू टेस्ट और मेज़र द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड अ फ्लोर मैट एंड अ paper to record basic information such as age, gender and total number of push-ups performed. Procedure: after proper warming up, ask the subject to take position. In a push-up position, hands and toes should touch the mat floor. Hands should be shoulder without apart the upper body, and legs should be in a straight line. Elbows should be fully extended, keeping the back and the knees straight. The subject lowers the upper body so that elbows may bend to 90 degree or chest may touch the mat floor. Then return back to the starting position with the arms extended. This is 1 repetitions. The same action is repeated and the test continue until exhaustion or until a subject can do more in rhythm. Count the total number of push-ups performed. तो इसका मतलब ये है कि जो पुशअप्स पर्पज़ होते हैं ऊपरी शरीर की ताकत और धीरज को परखने या मापने के लिए होता है। आवश्यक उपकरण इसके लिए हमें चाहिए एक फर्श की चटाई और एक कागज़, जिसमें बुनियादी जानकारी जैसे कि उम्र, लिंग और कुल संख्या में पुशअप्स दर्ज किए जाएंगे, उन्होंने कितने किए हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि उचित वार्मिंग अप के बाद विषय को स्थिति लेने के लिए कहें, मतलब अपनी पोजीशन लेने के लिए कहें। पुशअप पोजीशन में हाथ और पैर की उंगलियों को मैट फर्श में छूना चाहिए। हैंड पुशअप्स को कंधे की चौड़ाई से अलग होना चाहिए। ऊपरी शरीर और पैर एक सीधी रेखा में होने चाहिए। कोहनी को पूरी तरह से पीछे और घुटनों को सीधा रखते हुए बढ़ाया जाना चाहिए। विषय ऊपरी शरीर को कम करता है ताकि कोहनी 90 डिग्री तक झुक जाए या छाती चटाई फर्श को छू सके। फिर वापस विस्तारित स्थिति के साथ प्रारंभिक स्थिति में लौट जाइए। यह एक पुनरावृत्ति है, एक ही कार्रवाई दोहराई जाती है। पुशअप्स में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पुशअप्स मारे वैसे हमें उसे रिपीट करना होता है और इससे थकावट तक या जब तक आपको बिल्कुल थकावट फील ना हो जाए तब तक आप इसे कंटिन्यू करते रहिए। तब तक परीक्षण जारी रहता है। प्रदर्शन किए गए पुशअप की कुल संख्या की गणना करें, मतलब जितने आपने पुशअप्स मारे हैं 10, 20, उसकी फिर आप एक रिकॉर्ड रख लेंगे कि आपने कितने पुशअप्स करे हैं।